Hello students, this is the third part of the money and credit. Now, we are going to talk about in this chapter, that is two different credit situations. First of all, can anybody tell me what is credit? Credit means loan. Credit means loan, but credit means loan that is by credit. सम कोई ना कोई टर्म्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोन अप्लाई करते हैं एंड बैंक हमें वो क्रेडिट पर ही लोन देता है. तो दो तरह के टू डिफरेंट क्रेडिट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. Two different credit system, that is, first one is, here in this chapter you are going to study the in book two types of credit system is given, that is, one is about the what is his name, Salim, about his Salim, and the other one is Swapna. Two persons are going to ask क्रेडिट. ये किस तरह की क्रेडिट को ये अप्लाई करते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसका फीडबैक मिलता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सलीम. सलीम, वी डोंट नो नीड ऑफ रीडिंग दिस एंड बाय हर्ट दिस स्टोरी. स्टोरी में से नहीं पूछेंगे कि सलीम कहाँ गया था, सलीम वो क्या बना रहा था. दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दैट. बट ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सलीम किस टाइप के क्रेडिट को वो अपनाया था. सलीम वॉज इन फेस्टिवल सीजन. यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है. इन फेस्टिवल सीजन सलीम हैज़ अ ऑर्डर. ही इज़ अ शू मेकर. ही इज़ अ शू मेकर एंड ही हैज़ अ ऑर्डर, अ very big order, that is he has to make 3,000 pairs of shoes from a production. He have to deliver it in a month of time, that is as a festival season. Then he is a small producer or small person. He don't have the money. Then how will he make this money or this shoes? Salim has to hire a few more workers for this. In a month he has to provide few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials for leathers and the other things which is necessary for the shoemaking. He has a need of this. Then to meet these expenses, Salim sorry Salim obtains loans from two sources. He obtained loan, okay, not from the bank. See, every loan is not at all possible to get the loan from the bank. He had two sources of loan. That is, first he asked the leather supplier to supply leather. So he had asked the leather supplier to supply leather, and whenever he had promised that whenever he will complete his production and if he will get his money back, profit, then he will give it to him. So he obtained loan in cash from the large trader as advance payment. Okay, as an advance payment also. From the leather maker also he had taken the leather as a extra money, because afterwards he will pay this money. Okay, next, then he had taken a large amount of money from a trader. Okay, a big trader or money lenders. He had asked some money from them, and the whole order by the end of the month, and he delivered. He worked hard. He had hired the workers and he worked hard and he had completed his all the demands and delivered his order on time, and he had got his payment back. 3,000 shoes he had produced and he had got his payment. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed, and whatever he had given the leather producer the money and the money lenders from where he had taken the sum of money, then he had returned back to him also. This is the situation of credit plays a vital and positive role in this situation. Now he had got profit in this time
he had got profit and he had a sum of money with him also. He can produce another some leather shoes and all that, and he can earn lot of money. In second case, before explaining this, I want to explain the cases, then only I will tell you what is this. In Swapna's problem, she is a farmer. She is a very small farmer, but grows groundnut on her 3 acres of land. 3 acres of land are there, and she grows groundnut. She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation. Now, she had asked money lender to give some of money, so that she can expense the for the cultivation, like irrigation, seeds and other things, ploughing and all that. It needs a lot of money to cultivate the things. So she had taken the money, hoping that her harvest would not repay the loan. So her harvest will pay the loan, whatever money she will lend. Then after producing the cultivation, she will वो अपने अनाज को बेचेगी, ग्राउंडनट को बेचेगी, और जो पैसे पाएगी वो मनी लेंडर को दे देगी, और बचा हुआ पैसा उसका प्रॉफिट हो जाएगा. ये होप से, दैट वाज द होप ऑफ दैट वुमेन, एंड शी लेंड द मनी. उन्होंने अपना ग्राउंडनट लगाया, प्लफिंग किया, मेहनत किया, सब कुछ. शी हैज वर्क हार्ड, बट देयर आर द पेस्ट अटैक, द अटैक ऑफ द पेस्ट. कीड़ों का अटैक हो गया, एंड द ग्राउंडनट वॉज डैमेज्ड. पूरी तरह से खेती डैमेज हो गई. एंड मनी लेंडर, नाउ ऑल द कल्टिवेशन हैज़ बीन डैमेज्ड. जो उन्होंने सोचा था कि वो इसका कल्टिवेशन अच्छा होगा, हार्वेस्ट अच्छा होगा, और शी विल गेट द मनी एंड शी विल लेंड बैक द मनी. बट अब क्या करें, उन्होंने लोन लिया. मान लिया, मैं रख लेती हूँ 2 लाख लोन लिया, एंड शी हैड कल्टिवेटेड लैंड. नाउ शी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मनी, एंड हाउ विल शी पे? She is unable to repay the money lender, and the debt grows over the year into a year amount, large amount. अब सालों साल वो large amount में बढ़ते जा रहा है. Next year, hoping about the next year that cultivation will be good, she had again lent the money. ये होप करके कि इस बार कल्टिवेशन अच्छा होगा. But this year the cultivation was good enough, है ना. मान लिया अच्छा हुआ, और अब की बार उसके 2 लाख के मनी उन्होंने जो लिया था, उससे ऊपर होकर 2,10,000 के उन्होंने ग्राउंडनट को बेचा. ठीक है. बट अब क्या था, उन्होंने 2 लाख तो पहली बार लिया था, दूसरी बार भी उन्होंने 2 लाख लिया. अब क्या है कि उनकी जो, अब ये तो है नहीं कि करोड़ों में बिकने लगेंगी, है ना. अचानक कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और शी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट. In that case, she has to pay the money lender the money, और अभी उनके पास तो एक भी पैसा नहीं हुआ. तो इसे कहते हैं debt trap. Credit pushes the borrowers into a situation for which cover very painful, और इसे ही कहा जाता है debt trap. Debt trap मतलब उधार के चंगुल में फंस जाना. Now she is not able to recover from the debt. अब वो उधार से चूक ही नहीं रही, बिकॉज अब पिछला ही उनका 2 साल का जो लोन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है. तो हाउ कैन शी बी कम ओवर. तो ये जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब लोन की. और ये सिचुएशन, 2 तरह की सिचुएशन, वी हैव स्टडीड दिस 2 काइंड्स ऑफ सिचुएशन. वाई? बिकॉज पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं. पॉजिटिव हमारे टर्म्स पर डिपेंड करती हैं. जब हम लोन लेते हैं तो हमारे टर्म्स पर डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना. अभी कल्टीवेशन में आपने लोन ले लिया, एंड यू डोंट हैव टू श्योर, वो श्योरिटी नहीं रहती कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी कि खराब होगी, मार्केट कैसा होगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दैट.
अभी जैसे टोमेटो हो गया, मैंने हमें टोमेटो के लिए इन्होंने लोन ले लिया है ना। इस साल टमाटर बहुत महंगे बिके हैं, 80 रुपया 100 रुपया किलो बिके हैं। नाउ शी हैज़ टेकन द लोन फॉर द टोमेटो प्रोडक्शन कल्टीवेशन, ठीक है, उन्होंने टोमेटो कल्टीवेशन कर लिया। अब क्या हुआ, इस बार बहुत सी प्रोडक्शन हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया टोमेटो, एंड एट दैट पीरियड इन दैट टाइम तो उनके क्या 10 रुपया में वो बिकेंगे, और इन्होंने जब बीज लिए थे वो 20 रुपया मिला। अब तो यहाँ आ गई प्रॉब्लम। तो दैट इज द टर्म सिचुएशंस, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोन ले रही हैं और ले रहे हैं। दैट इज द कंडीशन विच इज द सिचुएशन। दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, वो आपकी डिपेंड करती है टर्म्स पे। टर्म्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे। टर्म्स ये क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ले रहे हैं या बैंक दे रही है तो किस टर्म्स पर दे रही है, आपको लोन मिलता भी है तो किस टर्म्स पे मिलता है ना। दीज आर द कंडीशंस ऑन विच वी गेट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशंस पर। पहला होता है इंटरेस्ट रेट, पहला होता है इंटरेस्ट रेट। द बैंक और द मनी लेंडर ओनली लेंड यू मनी, अगर आपको पैसे दे रहे हैं, देन दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल और द बैंक नीड अ सम ऑफ द, कुछ पैसे उन्हें इंटरेस्ट में चाहिए होता है, एंड देयर आर कंडीशंस ऑन विच, टर्म्स मतलब कंडीशंस, उसी कंडीशंस पे वो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है बेटा, द कोलैटरल इज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट और टर्म्स दैट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। जो आप लोन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी चाहिए, ओके। इफ शी हैज़ लाइक स्वप्ना, शी हैज़ 3 acres ऑफ लैंड, है ना, तो मनी लेंडर्स ने अगर उन्हें मनी को वो लेंड करते जा रहे हैं उन्हें, ही हैड अ क्रेडिट, उसके पास वो क्रेडिट टर्म्स है कि इफ़ शी विल नॉट लेंड और शी विल बी नॉट एबल टू लेंड रिफंड द मनी, देन ही कैन हैव अ हिज लैंड ऑल्सो, है ना। तो वो वहाँ पर टर्म्स वही है, कोलैटरल मीन्स आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब बैंक में गए, मुंह उठाए और आपने कह दिया मुझे बैंक से मुझे सॉरी मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा भैया कहाँ से दें आपको पैसा, क्यों दें आपको पैसा, कौन हो तुम। इन दैट टाइम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड अ क्रेडिट। कुछ लोग लैंड रखते हैं, बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, दे हैव टू गिव द पेपर्स टू बैंक। अब ये तो घर ले जाकर उनको बैंक को थोड़ी ना देंगे, घर के पेपर्स चाहिए, कार के पेपर चाहिए। अब कार उठाकर नहीं ले जाते हैं वो, जब आप लोन नहीं पे कर पाएंगे तो वो कार ले जाते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट्स विथ all the life stocks deposit with bank and uses this as a guarantee as a lender until the loan is repaid। जब तक वो लोन नहीं पे किया जाता है तब तक वो पेपर्स उनके बैंक के पास और मनी लेंडर्स रखते हैं। ये आप लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा होगा, पहले के ज़माने में मुनीम जी जाते थे और उनके खेतों को कब्जा कर लेते थे और दे यूज टू, दैट वाज द कोलैटरल पार्ट, है ना, वो कोलैटरल ही होता था। बट क्या था कि वो धोखेबाजी से करके पैसे भी ले लेते थे, इंटरेस्ट भी लेते रहते थे, एंड आफ्टर लास्ट दे से दैट यू हैव नॉट पेड एनीथिंग एंड दे टेक द ox or the land or the whatever they had that poor peoples they used to take it, है ना। तो ये था टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट, कोलैटरल। नेक्स्ट है मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट मीन्स हाउ दे हैव टू पे, ना, किस तरह वो रीपे करेंगे। और डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स मीन्स आई हैव टोल्ड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, योर आधार कार्ड, योर ID एंड ऑल डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लोन, ओके बेटा, सॉरी। नेक्स्ट वन इज that is loan from cooperative society, means we have talked about the money lenders, the individual, है ना, and we have talked about the bank which provide the loans. The next one is loan from cooperative societies, or this society, see you can see in the picture
Here all the people are forcing together means cooperation with the cooperation. Several type of major source of cheap credit in rural areas. Nowadays in rural areas very several types of cooperative societies are there, like farmer cooperatives. We farmer cooperatives means all the farmers get together, वो एक साथ मिलते हैं और एक cooperative चलाते हैं, है ना. दे लेंड द मनी इन द कोऑपरेटिव, वो अपनी पैसे कुछ जमा करते हैं, सब लोग अपने अपने पैसे जमा करते हैं. द फार्मर हु नीड्स अ लॉट, ना, जिस फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दे लेंड द मनी टू दैट फार्मर एंड दैट फार्मर ऑल्सो provide the money after producing, after cultivation. If they get the profit, they return back the money and later on the other farmer gets the money. इस तरह वो अपने में ही आपस में मिल के एक साथ पैसा जमा करते हैं, सभी लोग थोड़ा 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 जमा करते हैं एंड that becomes more and in this way they can have a cooperation with each other. Weavers cooperative, that is the कढ़ाई करने वाले जो होते हैं, वो सिलाई बुनाई वाले, that also textile industry, small textile persons in living in the villages, they also get together, they make a cooperative and they have a cooperative societies. All these industrial workers cooperative also, the big industrial person also, they have also cooperative society and they used to help each other. Here Krishak cooperative functions, members 2300 farmers get together, it accepts deposit from its members, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड these deposits are collateral, obtain a large loan from the bank. और ये कोऑपरेटिव क्या करते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, है ना, उनके पास क्रेडिट है, they have the credit that a lot of farmers are there and they are get together, है ना, तो वो बैंक से भी लेंड करते हैं, used to provide loans to their members. आई थिंक लोन्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो समझ में आ गई होगी, कोऑपरेट करके एक साथ एक तरह के लोग होते हैं और वो एक साथ मिल जाते हैं और अपने अपने पैसे वहाँ जमा करते हैं कुछ कुछ, और जो एक साथ बहुत सारा पैसा हो जाता है फिर वो बैंक से भी ऑब्टेन करते हैं लोन को, और वो क्या करते हैं, ये पैसे एक अपने किसी 2 या 3 मेंबर्स को लेंड कर देते हैं और वो इस तरह फार्मर्स एक दूसरे को हेल्प करके, या फार्मर्स ही नहीं, वीवर्स ही नहीं, इंडस्ट्रियल्स, सभी को ये सब हेल्प मिलता रहता है. And in this way we are going to study about the 2 sources of loans. हम 2 तरह के लोन्स लेते हैं. अभी हमने पढ़ा स्वप्ना और सलीम की स्टोरी, है ना, लोन कहाँ से कैसे लिया जाता है हम इन सब चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं. 2 source of loans are there. हम लोन्स लेते कैसे हैं, वो है बैंक से, है ना, हमने सुना बैंक से, इंडिविजुअल से भी मैम बोल रही है लोन आप कहीं से ले लीजिए, लोन आपके टर्म्स पे लिए जाते हैं, है ना. तो वो कौन कौन से होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं बेटा, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, देयर इज अ ग्राफ गिवन इन योर बुक about the formal sectors or informal, all the sectors of the loans. लोन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, है ना. 1% ऑफ गवर्नमेंट से भी लोन मिलते हैं, वो होता है सिर्फ 1%, बहुत कम रेयर लोगों को मिल पाता है. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बिग अमाउंट, और बहुत बड़ा अमाउंट जो है एक दूसरे को लोन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है. देन अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज आर ऑल्सो देयर, मेनी एजेंसीज, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, दे मेक द एजेंसीज टू प्रोवाइड द लोन टू द पीपल, है ना. फिर लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, बहुत बड़े बड़े रिच लोग लैंडलॉर्ड्स हैं, और दे ऑल्सो प्रोवाइड द मनी और लोन टू द फार्मर, स्मॉल फार्मर्स. देन मनी लेंडर्स तो है ही, जो ब्याज पर पैसे देते हैं और आपसे 2 गुना ब्याज लेते हैं, 2 गुना ब्याज देना होगा, लाइक दैट वी से ना. हमने देखा है लगान पिक्चर में 2 गुना ब्याज क्यों ले रहे थे, दैट वाज द बिकॉज दे वेर परमिटिंग टू देम टू कल्टिवेट, दैट इज़ वाई. बट अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था. नाउ द मनी लेंडर्स जो है वो पैसा ब्याज इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपना पैसा उन्हें दे रहे हैं, और दैट इज़ द बिजनेस, ये बिजनेस है. एंड द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स,
है ना। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी हम लोग पैसे लेते हैं, उनके वापस भी नहीं करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंड अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, और भी कई एजेंसीज हैं। तो दो तरह के लोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, यहाँ पर दिया हुआ है। जो ये क्रेडिट दिया हुआ है सोर्सेज 100 रूरल लोगों के बारे में है कि वो 100 रूरल में से कहाँ कहाँ से लोग लेते हैं। In the next video, we will study about the formal and informal loan system. Thank you very much, students.